Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and very good morning to one and all. How many of you have learned the formula, quadrant, whatever we have taken in the last classes of trigonometry? How many of you have learned the formulas, integrations, in trigonometry? So again today, अगर आप लोग सामने होते तो मैं आप लोगों से आज फॉर्मूले पूछता, उसके बाद में ही क्लास को स्टार्ट करता, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस दैट not more than 20 to 25 students have learned the formulas. Most of the students just simply they are maintaining their notes, or some of them are just maintaining their memories, just keeping pictures or snapshots in their mobiles. अब पता कैसा चले कि कितने बच्चे पढ़ लिए हैं, कितने बच्चे नहीं पढ़े हैं, उसका सबसे बड़ा मेन, यही हमारा मेन प्रॉब्लम है कि हम बच्चों को पढ़ाने के बाद सुन नहीं पा रहे हैं। समझना तो बहुत दूर की बात है। How many of you have learned? Simply raise your hands. Formulas, quadrant, identities, reciprocals. Raise your hands. Yes, only 2 students, 4 students. अब देखो बेटे, ऑनेस्टली अगर बच्चे ये हाथ उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये सोच रहे हैं कि सिर्फ हम हाथ तो उठा देंगे, सर कौन सा सुनने को आ रहे हैं, ऐसा अगर रहा तो फिर समझ सकते हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, मोहम्मद अकरम याद कर लिए गए थे, मोहम्मद इस्माइल भी। ओके, out of 40 students only I got response from 6 to 7 students. 6 to 7 students are responding me. I think that they are not seeing their notes, or they are not studying after the class. अच्छा काम कर रहा है ना? Yes, mic is working now. What happened to my mic? It's good. It's good. Hello. Now what happened? Now it's proper in way. Audible to all? Yeah, exactly. So after that, the quadrant Q1, Q2, Q3, Q4, all silver teacups. We all know that about the all silver teacups. All means all 6 trigonometric ratios positive in first, and next silver stands for sine, and sine reciprocal is cosecant. Cosecant. These two are positive, and rest of 4 are negative. भाई एक mic काम नहीं कर रहा. Hello. Just wait a minute, boy. Just wait a minute. Some problem in my mic. Just wait. Okay. चलो बस मस्त आवाज आ रही है. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो hello. Now it's okay. Is this okay to everyone?
right? But please respond me whether you are audible to me or not. No, it's okay. Okay, right. Now it's clear, sir. Light reflecting on the board. Just wait. Okay, right. It's okay now? Yes. I think it's okay now. Come. Right. So now, first of all, we know about the lead angles. Yes, lead angles. Actually, what happened? इसके अंदर ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ 36 6 18 18 plus 24 फॉर्मूले है. But what I think to just give you 6 formulae, that is also not a big deal. First of all, we have to see whether the theta is negative or 90 plus or minus theta, 180 plus or minus theta, 270 plus or minus theta, 360 plus or minus theta. For this one, 6 6 12. 12 1 12 12 24 12 36 12 48. 48 plus 6 54 फॉर्मूले हो जाते हैं. तो हम एक काम करेंगे, सिर्फ हम इसी के फॉर्मूले लिख लेंगे. फॉर्मूले क्या है वो? हाउ द थीटा रिएक्ट्स, हाउ द थीटा रिएक्ट्स when the theta value has negative sign, how the trigonometric ratio reacts, how the trigonometric ratio reacts, how the trigonometric ratio reacts when the theta reacts, okay, sine of minus theta is equals to cos of minus theta is equals to tan of minus theta is equals to cot minus theta, secant of minus theta, cosecant of minus theta. Now, these are all known as lead angles. ALLIED, lead angles. The trigonometric ratio in lead angles है. उसके अंदर हम थोड़ा सा है कि अगर थीटा हमारा माइनस हो गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे रिएक्ट करते. साइन ऑफ माइनस थीटा में ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा. कॉस ऑफ माइनस थीटा में दिस बिकम कॉस थीटा. एंड इन टर्म्स ऑफ tan minus tan theta minus cot theta, again secant theta and minus cosecant theta. So देखिए सिर्फ और सिर्फ as per the reciprocal rule cos and sin will becomes positive. Once we got cos of minus theta and secant of minus theta, these two becomes as plus cos theta plus secant theta. While if you are seeing for this 4, while we are seeing of this 4, sine of minus theta is minus sine theta, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta is minus cot theta, cosecant of minus theta is also minus cosecant theta. Why we are taking minus these two thetas? We are going to study
some equations which are known as trigonometric equations, in which we have the pi, 2 pi plus 1 pi by 2, 2 pi plus 1. The angle is derived in 2 pi plus 1 into pi by 2. So 2 pi gives you the real, okay. 2 pi plus 1 is always give you the odd numbers, क्योंकि वो सीरीज कौन सी है 2 pi plus 1, 2 pi 2n plus 1 into pi by 2, right. 2n plus 1, अगर हम n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, और अगर हम n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये 5 आएगा, और अगर n की वैल्यू अगर हम 3 लिखेंगे तो ये 7 आएगा। 1 3 5 7, तो ये ऑड सीरीज में आगे बढ़ेगा है, और इनटू 9 मल्टीपल। सो एज आई सेड यू, व्हेनेवर वी हैव ऑड मल्टीपल्स विथ, समझ में आ गई ना बात, जो हमने पढ़े परसों पढ़ा था पूरा कंप्लीट एक डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। और ज़हीर आपका जो डाउट है वो मैं डाउट आपको ही क्लियर करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक से हटकर डाउट है। ओके ज़हीर, आपका जो डाउट है वो मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, आपका डाउट हमारे टॉपिक से हटके है, ठीक है। हम सर्कुलर सिस्टम पढ़ने के बाद आज आप उसका पूछ रहे हैं ऑलमोस्ट 3 दिन के बाद। I will teach you because you want it, you raise that doubt, so I am going to teach you, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़े हैं इसके अंदर तो पूरा टोटली डिफरेंट आ गए हम, ठीक है। वो सर्कुलर सिस्टम, सेंटिसिमल सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम सब हो गया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गए थे, ठीक है। आई विल टीच यू, ओके, डोंट वरी। तो व्हेनेवर वी हैव the series, the equation is in 2n plus 1 into 90 pi by 2. At that time we have to see whether the cos and secant has the trigonometric equation के हिसाब से cos of minus theta cos theta बन जाएगा, secant of minus theta secant theta बन जाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है बेटे, आपको सिर्फ इतना ही करना है, sin tan cot secant, बस। माइनस आए तो माइनस ही रखेंगे वो लोग, प्लस दो होने वाले सिर्फ दो ही चीज हैं, cos of minus theta cos theta, secant of minus theta secant theta, that's it, बस इतना ही पढ़ना है यार, ठीक है। अब मैं इसके 6 इसके 6 इसके 6 इसके 6 प्लस के, फिर माइनस के भी 6 लिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, हमारे जो नॉलेज है क्वाड्रेंट्स का, वो नॉलेज के हिसाब से हम उसमें से खींच के ला लेंगे, वरना मुझको आई थिंक 12 ऑलमोस्ट 24 फॉर्मूलेस, 48 फॉर्मूलेस और लिखाना पड़ता। तो मैं अपने बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, बस आप लोग इतना ही पढ़ो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? हाँ, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में जो 90 और 270 पे मैंने जो सर्कल किया था उसको अच्छे से दिमाग में बिठाओ, हम उसी के ऊपर से ये 48 फॉर्मूलों को ऐसे पढ़ लेंगे, ठीक है। सो राइट ऑन दिस वन, ये कुछ मत लिखिए आप, इसकी हेडिंग लिख लीजिए। मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए, इसकी हेडिंग क्या लिखना है हम ये भी तो देख लेंगे पहले। बेटा 1 मिनट जरा मैं इसमें देख लूं कि आप लोगों को हेडिंग क्या लिखाऊं। मैं तो सोच रहा था कि उसको डायरेक्ट एलिड एंगल्स लिखा दूं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एलिड एंगल लिखाना बेहतर होगा, मैं समझ रहा था। चलिए बस इतना याद रख लीजिए ये कि एलिड एंगल्स है।
trigonometry, trigonometric functions in lead angles. lead का मतलब 90 plus theta, 90 minus theta, which shows your quadrant, where your quadrant lies. 180 plus theta, 180 minus theta, 270 plus theta, 270 minus theta, and similarly for that one also. So इसके हेडिंग लिखिए ये. अब इसके बेस्ड ऑन कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे हम लोग. Over. Yes, finished. चलो बेटे ज्यादा मैसेज भेजते जाएंगे आप लोग. अभी तो ये खत्म हो गया ना हमारा. What we should write, sir? Trigonometric functions in lead angles लिखिए और trigonometric ratios in lead angle लिखिए. लिखकर ये पार्ट लिख लो, ये साइड में ऐसे ही छोड़ दीजिए. ये मैं आप लोगों को एज पर द प्रॉब्लम बताऊंगा. ठीक है बेटा, ये पार्ट लिख लो, ये वैसे ही छोड़ दो. पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना लेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी. डू इट फास्ट, यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. सिर्फ 6 वर्ड लिखने के लिए. सर कल से कॉलेज आना है. बेटे कल तो 31 है. मुझसे मत पूछो कॉलेज खुल रहा है नहीं खुल रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो कॉलेज पिछले 3 महीने से खुला है. देखो बेटे, मैं तो हाँ ही कहूँगा. आप लोगों को अगर अपने बारे में मालूम करना है तो मैनेजमेंट. यस, चलो वेरी गुड. चलो हो गया. स्क्रीनशॉट ले लिए, रख लिए साथ अपने. चलिए 2-3 बेहतरीन प्रॉब्लम पढ़ लेंगे हम, जिससे मजा आ जाए कि हाँ भाई जिसमें कुछ बात है. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एग्जाम्पल के साथ चलेंगे. वेर आर यू सुधीर, सुधाकर, and some of the other student. Abu Talha is also present or not? Abu Talha, Ismail आ गए, मुस्तफा आ गए. Many more students. I'm waiting for your responses. Where are you all? I think this rainy season just helps you to sleep more and more, isn't it? Yeah, it seems like that only. So we'll see some problems based on this one. Find the values of example है पेज नंबर 227. आईपीए की बुक है बेटा ये. हम इसमें से पहले क्वेश्चंस कर लेंगे. आपको पैरेलली जेडब्ल्यू की बुक्स में से भी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगे. ओके, फाइंड एग्जाम्पल नंबर 1. Find the value of sine 210 degree. Sine 210 degree. Sine 210 degree. एक बात याद रखिए, जब भी कभी हम एंगल को देखें, whenever we see the angle, just we have to think, or we have to split this angle in that way
split this angle in that way wherever quadrant lies, जहां पे हमारे क्वाड्रेंट लाइज करते हैं वहीं पे लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है हम उसके थ्रू जाएंगे। दो चीज याद रखना बेटे, देखिए किसी को इसके अंदर फिर से डाउट नहीं आएगा, सर ये आप 210 को 180 प्लस 30 क्यों लिए, 150 प्लस 60 का क्यों नहीं लिए, 150 प्लस 60 भी 210 होता, 200 प्लस 10 भी तो वही होता ना। फिर उसके बाद में 180 270 270 माइनस 60, हाँ ये भी ले सकते हैं, 270 माइनस 60 इज आल्सो 210, ये दो ले सकते हैं आप। सर ऐसा क्यों नहीं करे आप 185 प्लस 25 क्यों नहीं करे, ये भी तो 210 होता ना। और 170 प्लस 40 कहीं क्यों नहीं करे सर, ये भी तो 210 होता ना। 165 प्लस 45 इसको आप 210 होता ना सर, इसको ऐसे क्यों स्प्लिट नहीं करे। दिमाग में अपने इतने क्वेश्चंस रेज हो जाते कि भाई व्हाई शुड वी split the 220 in this two way only, why all these are not flexible to do a problem in the proper way, to do the problem in the proper to do the problem in the proper way. Yes sir, present right, quadrant 3 ओके ठीक है। चलो अभी क्या हो गया बेटे यहाँ पर, अब आप सोच सकते हैं सर आप या ये लीजिए या ये लीजिए, ये मत लीजिए, क्यों, हमारे पास 150 को फिर स्प्लिट करना पड़ेगा 90 प्लस 60, और हमारे पास क्वाड्रेंट जो है 90 180 270 360 और 0, यही है ना। तो हम अब इसी के थ्रू, इसी के बेस्ड ऑन हम हमारे क्वाड्रेंट को स्प्लिट करेंगे बस, ये 4 के थ्रू। अब ये 4 से आप प्लस होता है तो प्लस करिए, माइनस होता है माइनस करिए, और साथ में इसके बेस्ट तो ये होगा कि हमारे वैल्यू सिर्फ इतने ही हो जाए 30 60 45 90 30 0 30 45 60 90 इसी के अंदर रहे तो और अच्छा रहता, क्योंकि हमारे पास इसके पहले से वैल्यूज डिफाइन करे हुए हैं। ओके, सो व्हेन वी गॉट दिस वैल्यूज and the quadrants are 90 270 60, so we have to think only in that quadrant form. सर ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं बोले तो बस खाली नहीं 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 बोलते बैठना, रिजल्ट भी अपना नहीं में आता। क्यों, हम इसके लिए फिर अपने लिए अलग क्वाड्रेंट नहीं बना सकते, जो हमको टेक्स्ट बुक्स में क्वाड्रेंट बना के दे दिए गए उसी के ऊपर हमको काम करना है। अब इसी में अगर प्लस हो रहा तो ये साइड आ जाता, माइनस हो रहा तो ये साइड आ जाता, इसमें अगर प्लस हो रहा तो ये साइड, माइनस हो रहा है तो ये साइड, इसी में भी अगर प्लस हो रहा तो ये साइड, माइनस हो रहा तो ये साइड, सिमिलरली फॉर ईच एंड एवरीवन एज वी ऑल नो दैट, राइट। सो अब जब भी हम सोचेंगे हमारा काम यही होगा कि हम अपने दिमाग में सबसे पहले इसको रखें 90 180 270 360 में इसकी हेल्प लेकर ये वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, चाहे वो प्लस से आओ या फिर माइनस से आओ। गॉट इट, समझ में आ गई बात। अभी आगे बढ़ो, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कहाँ बेटे आप, यहाँ पर। Solution given sine 210 degree is equals to, we can keep sine as it is into, we can write 180 plus 30 degree, 180 degree plus 30 degree becomes 210। चलो सबसे पहले देखना बेटे, सबसे पहले देखना साइन 180 पर चेंज होता नहीं होता, नो चेंज, साइन 180 नो चेंज, साइन 180 नो चेंज, दैट मीन्स साइन साइन रहेगा, थीटा एज इट इज लिख देना।
खत्म हो गया हमारा काम। सबसे बड़ा काम हमने हटा लिया है यहाँ से, खलास सबसे बड़ा काम हटा लिया हमने। कौन सा बड़ा काम था भाई? साइन, साइन जो है वो 180 पे चेंज हो रहा नहीं हो रहा, साइन का साइन लिख दो। मालूम हो गया कि 180 प्लस थीटा में साइन चेंज होने वाला नहीं है, वो लिख दिया। थीटा हमारा सेम लिख दिया। अब चेक करना 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पर आता, 180 प्लस थीटा 180 यहाँ पर आता, प्लस मतलब इधर आगे बढ़ रहे हैं। दैट मीन्स वी आर इन क्वाड्रेंट 3। क्वाड्रेंट 3 में साइन, क्वाड्रेंट 3 में साइन, क्वाड्रेंट 3 में साइन नेगेटिव है साहब। क्यों? ऑल सिल्वर टी, टी फॉर 10 और कॉट, टी फॉर 10 और कॉट, टी फॉर 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसीलिए यहां पर देखना साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 पे नो चेंज, थीटा हमने सेम लिखा। अब क्वाड्रेंट चेक कर रहे हैं, क्वाड्रेंट चेक कर रहे हैं हम। क्वाड्रेंट कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, माइनस एज इट इज। साइन 30 की वैल्यू क्या है बेटे? 1/2। वेरी गुड। चलो दिमाग में भी क्वेश्चन मेरे आ गया कि सर अच्छा ठीक है आपने इससे तो हमें बता दिया, राइट सर। अब एक काम करिए, आप यही प्रॉब्लम को ऐसे स्प्लिट करिए सर। साइन 270 माइनस 60, ठीक है? गॉट इट सर। थोड़ा सा एक काम ऐसा कर लीजिए कि इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए। नहीं दिख रहा है बोर्ड साइड में, साइड में बोर्ड नहीं दिख रहा ना बाबा। माय वॉइस इज लो। आपका सिस्टम कुछ भी खराब होगा बेटे। अरे बेहतरीन आवाज है मेरी। नाउ इट्स ओके। अब्दुल रहमान, अब बराबर है ना बेटे? -1/2। वेरी गुड आंसर। यस सर, यस सर। नाउ ऑडिबल टू ऑल। Yes, it's clear. My voice is clear. -1/2। वेरी गुड ख्वाजा अल्ताफ हुसैन। चलिए अब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड इसमें छुपा लिया प्रॉब्लम को। मैं इसको इधर हटा के लिख लूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। थोड़ा सा ऐसे चले जाएंगे हम, नैरो माइंडेड। साइन 210 ऑल्सो वी कैन राइट 270 माइनस 60। चलो बेटे अब आ जाओ, इसका भी सेम आंसर लाके बताना। चलिए कम साइन 270 पे just remember my points what I have given you। 90 270, 90 270 पे तो चेंज होता ही होता। उसके बाद में 9 में ऑड मल्टीपल, देखो ये हो रहा नहीं हो रहा। साइन 90 into 3 minus 360 हुआ ना बेटे? 93 is 270, 93 is 270। what I have given you, if we have क्या, if we have multiple of odd number with 90s, 90s के साथ अगर मल्टीपल ऑड नंबर में आ गए, 90 का मल्टीपल रख के साथ में ऑड नंबर उसके मल्टीपल हो गए, तब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल चेंज। साइन बिकम कॉस, कॉस बिकम साइन, साइन बिकम्स व्हाट बेटे? कॉस। डायरेक्ट थीटा लिख देना, खलास। सर -60 था फिर आप +60 कई को लिखे, ये बात तो सोचने की है। कुछ नहीं सोचना है बेटे। This will give you whether your quadrant lies, where your quadrant lies in। आपका क्वाड्रेंट कहाँ पे लाइज कर रहा है वो बताना है इसको। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? नहीं समझे? ये जो प्लस है, यहाँ पे जो माइनस था, यहाँ पे जो प्लस था। अब आप सोचेंगे सर यहाँ प्लस था तो +30 लिखे, हम समझ गए थे। लेकिन अभी -60 था, -60 नहीं लिखे। नहीं, वो माइनस और ये प्लस, जब भी ये प्लस ये माइनस होते हैं, ये सिर्फ आपको क्वाड्रेंट कहाँ पर है वहां ले जाते वो लोग। आप कौन से घर में जाना है वो घर में ले जाके छोड़ते वो लोग, बस। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहता? साइन देखे 90 का ऑड मल्टीपल आया, साइन देखे 90 का ऑड मल्टीपल आया, साइन देखे 90 का ऑड मल्टीपल आया, साइन 90 ऑड मल्टीपल, यस चेंज, साइन 90 पे कॉस बन गया, ये 30 डिग्री 60 डिग्री आ गया सेम। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? पहले नहीं, उससे पहले तो चेक करना है ना हमें।
इस पे चेक करना है क्या है बेटा, ये 270, यस 270 माइनस थीटा कहाँ है बेटा, यहाँ पर 270 माइनस थीटा। अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 3, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है बेटे, इसको नहीं देखना, ये आपका आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर आ रहा है, इसको नहीं देखना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, इसी को देखना। क्यों, क्वाड्रेंट इन्हें बता रहा है आपको। जर्री सी भूल आपकी, जर्री सी चूक आपकी, आपका पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग कर देती। सो keep your mind quiet and listen here and apply the formula in your books. Okay, sin 90 plus sin 90 minus theta था ना ये, ठीक है, which फॉर्म में था ना, 270 माइनस थीटा बोले तो वही बोलेंगे ना हम। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सब जान देते, मत करिए आप डायरेक्ट ऐसे ही बता दीजिए। ओके बेटा, लो बता ही देता हूं मैं। साइन 270 पे चेंज, साइन 270 पे चेंज, साइन 270 पे चेंज, थीटा एज इट इज। 270 माइनस थीटा कहाँ, 270 माइनस थीटा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, इसी को देखना, इसको नहीं देखना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ नेगेटिव लगाइए, cos 60 खत्म। cos 60 वाली क्या है, 1/2। दोनों के सेम सेम आते। इतना स्लो ले जाने की वजह एक ही है, अगर आप बेसिक में अगर स्ट्रांग नहीं होगे तो सिंपल सी बात है बेटे, किसमें भी फिर आगे के प्रॉब्लम में किसी में स्ट्रांग नहीं होते आप लोग। ठीक है, चलिए जल्दी से दोनों भी कॉपी करिए। नाउ कॉपी इट। 270 माइनस थीटा वही कराना फिर मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक मैं अपने पास का एक अपना माइंड यूज कर लेता हूँ बेटे, कभी कभी मैं अपना दिमाग ज्यादा यूज कर लेता था पढ़ते वक्त में, तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा आप लोगों के लिए हेल्प हो जाती। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, मैं कभी भी क्या करता था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, कितना ही बड़ा वैल्यू आ जाए, व्हाट आई डिड, आई टेल यू। शॉर्टकट भी है इसमें, थोड़ा शॉर्टकट के बारे में भी सोचना है अपने। हो गया, आगे बढ़ेंगे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो। या अल्लाह या रहमान, cos 585। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 585 डिग्री, 585 डिग्री। अरे बाप रे साहब, ये क्या हो गया, ये तो हमारे 360 से आगे निकल के इसने बाउंड्री के बाहर ही छक्का लगा दिया साहब। ये देखिए, ये तो हमारी बाउंड्री सिर्फ 4 की थी, इसने तो इतना आगे बढ़ गया कि सिक्सर के आगे कोई और जो रन होता वो रन पे लगा दिया इसने बॉल को। अभी कैसे करें यार, टेंशन की बात नहीं है, सब चीज का सोल्यूशन है अपने पास। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। दो तरीके से बताऊंगा, जो आसान रहेगा, अगर आसान है, जिसको आसान दिख रहा है वो M1 लिखना, मेथड 1, और जिसको मेथड 2 आसान दिखा था वो M2 भेजना। उसके बाद जिस किसी का भी मेथड आएगा उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी जिसकी तरफ जाएगी उधर। डन, चलें आगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाऊं अभी। चलिए राइट, थोड़ी सी और स्पीड हमारी बढ़ते हुई और हम आगे बढ़ते हुए। आ जाओ बेटे, सोल्यूशन में यहाँ से लिख लूंगा, गिवन cos 585 cos as it is 585 माइनस 360 करो बेटे, कितने बचते, ये 5 बच जाएंगे, ये 2 बच जाएंगे और ये भी 2 ही बच जाएंगे। तो मैं इसको कैसा लिखूंगा, 360 प्लस 225, राइट, 585। ओके, ठीक है, ये मेरा क्या रूल है, ये रूल मेरा है, वहीद सर्च मेथड लिख लो आप लोग, वहीद सर्च मेथड, इसको नाम देंगे हम M1 मेथड 1। ये मैं ऐसा पढ़ा करता था ताकि मुझको थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा लगे और मैं आसानी से इसको समझ सकूं।
और एक भी इसके अंदर बाद में मैंने फिर थोड़ा रिसर्च करके निकाला कि बच्चों के लिए तो ये प्रॉब्लम बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा, प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। क्या हुआ बेटे, आप लोग मेरे को स्कूल से पढ़ाने नहीं देते? हाँ, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। अच्छा, आप लोग दिए ऐसा? ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम बेटे, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लो cos 360 पे नो चेंज, नो चेंज, तो cos का cos ही रहेगा, 225 बन जाएगा। अब उसके बाद चेक करिए, फर्स्ट 360 प्लस थीटा, 360 यहाँ था, 360 प्लस थीटा यहाँ पर है, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट वन में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये क्या है बेटे, पॉजिटिव ही है। समझ में आ गई बात? सबसे आसान, cos 360 नो चेंज, cos का cos, cos 360 नो चेंज, cos का cos, cos 360 नो चेंज, cos का cos ही रहेगा, 225 सेम। अब उसके बाद में चेक करो यहाँ पर आके 360 प्लस थीटा, ये जो प्लस है ये आपको बताता कि आप कौन से एंगल में हैं। 360 प्लस थीटा कहाँ है वो बताता आपको, किधर है आप बताइए, आइए आइए यहाँ पर आइए। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता, फर्स्ट में क्या है, ऑल, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल, ऑल के ऑल पॉजिटिव, तो कॉस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लस क्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे, ये बन जाएगा 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 25 होता ना होता, और कुछ होता क्या, 90 प्लस में भी कुछ और बढ़ता नहीं, अब तय है हमारा, बस यही देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, फिर से आ जाओ बेटे, कॉस, कॉस 180 पे क्या होता, कॉस ही रहेगा सर, नो चेंज, सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होने वाले हैं, ठीक है, सिर्फ 90 और 270 पे चेंज होने वाले, कॉस का कॉस ही रहेगा 45 एज इट इज। चलो कॉस का कॉस रहेगा 45 एज इट इज। अब चेक करिए, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट थ्री में कॉस क्या है, नेगेटिव है नहीं है, क्वाड्रेंट थ्री में कॉस क्या है, नेगेटिव है नहीं है। देखिए हर किसी के लिए बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आहिस्ता आहिस्ता ले जाता हूं बेटे, 180 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट थ्री में कॉस क्या है, क्वाड्रेंट थ्री में कॉस की साइन कौन सी है, माइनस है, माइनस लिख दिए, माइनस कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, माइनस 1/√2, माइनस तो है यहाँ पर, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, आ गई वैल्यू, कौन सी वैल्यू आ गई, cos ऑफ 585 की वैल्यू, cos ऑफ 585 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√2 है। ये था मेरा वाला मेथड। अब मेथड 2 में आ जाओ, मेथड 2, जिसको जो मेथड समझ में आया उसके ऊपर बोलना बेटे, ठीक है। कंटिन्यू मैसेज आया भी तो क्या है बेटे, थोड़ा 270 माइनस 45, 270 माइनस 45 क्या होता है, देखो देख के बोलो, 225 होता, 225 मुस्तफा 5, यस, हाँ बेटे ले सकते, वैसा भी कर सकते, ठीक है, यस डन। 180 प्लस 45, 270 माइनस 45, डन, सेम सेम वही 45 के खेल में खेलना रेंज में। चलिए सेकंड मेथड में आ जाइए। नाउ अगेन cos ऑफ 585 इज इक्वल्स टू cos, अब क्या करेंगे हम, 90 का टेबल पढ़ेंगे, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54, 54 कैसा लिखेंगे हम, 540 प्लस 45, हाँ हाँ, क्या बात है सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन है ये, हाँ ये बात हो गई। तो क्या बना था ये, cos 90 into 6 plus 45, oh my god, yes sir, 9 6 54, 9 6 54, 0 as it is, 45 तो सेम, oh yes exactly sir, एग्जैक्टली अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ बेटे, अब ये जो गेम है वाकई में बहुत बेहतरीन गेम है, यहाँ पर जो खेलते हम ही जीत सकते हैं इसमें। सबसे पहले कॉस देखते कि आप क्या करते, 90 कॉस के साथ 90 आप क्या करते, फौरन साइन डाल देते, नहीं, नो, नेवर। कॉस देखने के बाद आप 90 देखे, फौरन रेशियो चेंज कर दिए, इसका मतलब आपने सही नहीं देखा, आपने सिर्फ अपनी एक ही आंख से देखा है, दूसरी आंख को आपने बंद कर लिया था। वो दूसरी आंख क्या थी आपकी,
मल्टीपल ऑफ ऑड, 90 का मल्टीपल कौन सा है? यस, इवन नंबर है। अब बास बच्चों को इवन नंबर क्या है? आई कांट डू एनीथिंग फॉर दोज स्टूडेंट्स। मेरे पास आना, कॉलेज में रहना, स्पेशल क्लासेस जो हमारे पास होती उसमें आप लोग स्पेशल क्लासेस में स्पेशल कोचिंग लेना पड़ता बेटे। ऑड क्या है, इवन क्या है बोले तो। ठीक है, आगे बात समझ में? हाँ, तो आगे बढ़ो। चलो राइट, सबसे पहले आ जाओ। हमने इसको कर लिया था कैसा? 90 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करा, 540 प्लस 45 585। ओके राइट, फिर मैं सेम लिखा। अब 9 में मल्टीपल देखा मैं, 90 के साथ मल्टीपल इवन नंबर है तो कॉस का कॉस रहेगा। ये 45 मैं सेम लिख लूं। ओके सर लिख लीजिए, ओके सर लिख लीजिए बेटे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये एक सेकेंड, अब ये नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब दिमाग को हिला देने वाला प्रॉब्लम, दिमाग को हिला देने वाला स्टेप है ये। अब हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये क्या बन जाता? फिफ्थ, फिर ये क्या बन जाता? सिक्स। ओ माय गॉड, यस सर। फिर ये क्या बन जाएगा? 7, फिर नेक्स्ट 8, फिर जब यहाँ बढ़ेंगे आप ये 9 बन जाएगा, फिर ये 10 बन जाएगा, फिर ये 11 बन जाएगा, फिर ये छुप जाएगा 12 बन जाएगा। ओह सही भी सर, ऐसा क्या? हाँ, फिर नहीं तो क्या? क्या मतलब? 90 को 6 बार घुमाओ, एक बार यहाँ पर घुमा लिए, एक बार, 2, 3, 4 बार घुमा लिए तो 360 हुआ था। 5वीं बार घुमाए, 6th, 7th, 8th, ऐसे ही घूमते चले जाओ तो पता चल जाएगा कहां पर है हम लोग। अब ये हमको 10 की जरूरत नहीं है, 9 की, 11 की, 12 की जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये मैं रब कर दिया। देखिए जैसा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट खत्म हुआ, हम फिर आगे के बढ़े। फिफ्थ क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, सिक्स क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर। सिल्वर क्या? साइन, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट। कॉस क्या है इसमें? वेरी गुड, खल्लास। गेम अपने हाथ से अपन बजा देना बेटे, सब देने की। माइनस सेम 45 की वैल्यू 1/√2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू प्रॉब्लम्स? M1 आसान है या M2 आसान है? आई वांट योर लाइक, जस्ट लाइक करो, शेयर करो जल्दी जल्दी। मैं कोई चीज दूसरों को कहां शेयर कर लेते बैठते। सर बॉटम पार्ट इज नॉट विजिबल। ओके, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूं ताकि आप लोगों को समझने में, देखने में आसानी हो जाए। चलिए राइट, था बॉटम पार्ट। सर बॉटम पार्ट इज नॉट, वॉइस इज लिटिल बिट लो। अभी तो बड़ी हो गई बेटे, इतनी बड़ी कर लिया कि मैं बाजू के घर वाले आके मेरे को बोल रहे हैं साहब पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को डरा रहे हैं। सर फर्स्ट मेथड इज इजी, M1 इज इजी, M1 इज इजी, M2 इज इजी। 2 आए M2 के, 3 आए M2 के, 4 आ गए M2 के, 5, 6। बेटे रेटिंग M2 की बढ़ रही है, रेटिंग M2 की बढ़ रही है। JEE का बच्चा जो रहेगा वो M2 को पसंद करेगा, M और ये IP का जो बच्चा रहेगा वो M1 को पसंद करेगा। बेटे दोनों भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब अरे वही सर का ही मेथड खराब है? नहीं, वही सर का मेथड लॉन्ग है, वो इलायची है, लॉन्ग इलायची, बीच में आती दालचीनी। समझे बात? शुरू हो जाओ। M1 M1 M1। सर 90 के साथ 6 को क्यों निकाल दे रही? कौन बोले जी निकाल रहे बोल के? हाँ, कौन बोले निकाल रहे बोल के? निकाला मैं? अगर मैंने 6 को निकाल दिया तो खाली 90 रहता था। Who said you? Who said you? हाँ बेटे थोड़ा देखो, कोई मसला नहीं है, फर्स्ट सेकंड दोनों भी है। अब आपको मैं हमेशा सेकंड मेथड में बताऊं या फर्स्ट मेथड में बताऊं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई मसला नहीं है बेटे। मैं कौन, किसने कहा कि मैं ये 6 को निकाल दिया? अगर मैं 6 को निकाल दिया तो फिर जाना कहाँ? ये क्या है? ये 6 का 6 आपको, 6 जो है आपको पोजीशन देता, 6 पोजीशन देता। 6 क्वाड्रेंट कौन सा है बताता? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या है? ये है, ये है आपका 6। 6 क्या है? प्लस है या माइनस है बताता हूं आपका। आ रही बात समझ में? इन्हें प्लस में है या माइनस है? 90 तो आपको बता दिया, 96, 96 कॉस। 93 अगर आता तो साइन बनता था उन्हें। कोई चीज नहीं छूटती इसके अंदर, हर चीज पढ़ते हम लोग। ठीक है, चलो हो गया, जल्दी खत्म करो, डू इट फास्ट। अब मैं हर प्रॉब्लम सेकंड मेथड से ही कराऊंगा क्योंकि वी आर ऑल लिविंग इन द JEE वर्ल्ड। वी आर ऑल लिविंग इन द JEE वर्ल्ड। वी आर द कैंडिडेट्स ऑफ JEE। सेकंड मेथड देखेंगे, अगर किसी को समझ में नहीं आया फर्स्ट मेथड में बताओ, तो मैं 1 या 2 प्रॉब्लम फर्स्ट मेथड में बताऊंगा, उसके बाद में फिर नहीं।
Do it fast and finish it as soon as possible. Over. Shall we proceed? Shall we proceed? M2 समझ में आ गया sir. Just right. That's like a good boy. Tan 480. Oh my God. Some of the students are. कौन है ये? हो ना हो मेरे ख्याल से ये अकरम ही. हाँ अकरम ही है. अकरम बहुत आगे निकल जा रहे हैं. अकरम तुमको ट्यूशन की जरूरत नहीं है. यहाँ कॉलेज क्लासों की भी जरूरत नहीं है. घर में बैठ के पढ़ लो. हो गया बेटे. चलिए अब हम चलते हैं हमेशा की तरह M2 की तरफ. बहुत प्यारे प्यारे प्रॉब्लम्स हैं. वल्लाह मजा ही मजा आने वाला है. अब चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 480 डिग्री. tan 480 डिग्री. थर्ड है ये. थर्ड है tan 480 डिग्री. कहाँ है भाई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों पलट गया? अभी तो बच्चों के एग्जाम्पल्स ही नहीं हुए. चल tan 480 डिग्री आ गए. सोल्यूशन में चलिए. इज इक्वल्स टू tan हम सेम लिखेंगे. अब मल्टीप्लाई करिए. 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45. हाँ 9 5 45 प्लस 30. 9 से पढ़े थे हम. 45 ले लिए. 90 को छुपा दिए थे 0 से. तो 95 450 प्लस 30. दिस बिकम्स 480. ओ माय गुडनेस. यस सर एग्जैक्टली. नेक्स्ट tan क्या लिखे बेटे इसको? 9 इंटू 5. 9 5 45. 9 5 45. 9 5 45 प्लस 30. अब देखो बेटे ना tan तो है, छोड़ देना उसको. 90 के साथ ऑड मल्टीपल, 90 के साथ ऑड मल्टीपल, 90 के साथ ऑड मल्टीपल. देखो बेटे अभी कोई पूछे थे ना सर आप 6 क्यों छोड़ दिए? नहीं छोड़ते हम कभी भी कोई चीज नहीं छोड़ते. ठीक है. 90 के साथ ऑड मल्टीपल आते ही क्या करता? tan को कॉड बना देता. राइट. 90 के साथ ऑड मल्टीपल आ गया, कॉड बना दिया. 30 हम सेम लिख लेंगे. 30 हम सेम लिख लेंगे. हो गई बेटे? समझ में आ गई बात? अकरम जरा देख लो बेटे, आपसे कुछ गलती हुई शायद. अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे. क्या चेक करेंगे? 90 का फिफ्थ पार्ट कौन सा है? 90 का फर्स्ट पार्ट, 90 का सेकंड पार्ट, 90 का थर्ड पार्ट, 90 का फोर्थ पार्ट, 90 का फिफ्थ पार्ट. ये है ना फिफ्थ पार्ट. देखो बेटे सर्कल आया, इसका मतलब अभी हम वहीं पर है. देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट में गए, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में गए, थर्ड पार्ट हो गया, फोर्थ पार्ट में गए, फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट में आ गए. वेयर वी आर इन फिफ्थ पार्ट. अब आ गए ना यहाँ पर. अब यहाँ से क्या बोल रहा है? और ऐड करके इधर जाओ, और ऐड करके इधर जाओ. बोल रहा बोल रहा है ना? हाँ. तो अब ये कौन सा है? ये सिक्स्थ पार्ट है. ये किधर आ जाता? इधर. अब ये इनकम्प्लीट है. ये क्यों? 30 लिए खाली हम इसमें. ओ माय गॉड. यस सर 450 तो यहाँ पर हुआ था. 450 प्लस 30 हमारे 6 क्वाड्रेंट में आ गया. एग्जैक्टली सर. साइन और कोसिकेंट सिर्फ दो ही पॉजिटिव है सर. tan साइन और कोसिटिव, साइन और कोसिकेंट, साइन और कोसेक दो ही पॉजिटिव है. ये वाला नेगेटिव. नेगेटिव
हो गया बेटे अकरम, गॉट इट, यस एग्जैक्टली, माइनस एज इट इज। कॉट 30 की वैल्यू क्या है, कोई याद नहीं करा, हाउ बन जाएगा ये √3, यस एग्जैक्टली व्हाट वी हैव टू डू। आ गई बेटे बात समझ में आ गई। 45 तो यहां तक हुआ था ना, 450 यहां तक हो गया था, 450 यहां हुआ, 450 प्लस होने का है अपने को, प्लस प्लस मतलब 30 डिग्री और बढ़ाना है, 30 डिग्री यहां बढ़ेगा, इसका मतलब हम 6 क्वाड्रेंट में आ गए। 6 क्वाड्रेंट में आ गए के बाद चेक कर लेना कि हम कहां पे लाइज कर रहे हैं। चलो बेटे हो गया। M1 में एक बता दो यही टाइप का क्वेश्चन, इसी को M1 में बता दूं, -√3, वेरी गुड वेरी गुड, -√3 आना जी, डन मोहम्मद इस्माइल। चलिए बेटे M1 ने बताना, anybody needs, the problem is in M1 method 1, no need, shall we proceed for the next one, shall we proceed for the next one? सर फ्रॉम वेयर 30 कम्स, मैं मेरे घर से ला लिया बेटे, बेटे स्माइल, मेरे घर से ला लिया मैं, घर में पड़े हुए थे 30 डिग्री, तो उठाते आते तो उठा के लेकर आ गया। Who's that one is not, who's sending that he's not understanding, not understands, why, what is the, लेट ज्वाइन करिए आप, ये तो कुछ ये तो हमने सिर्फ इसको स्प्लिट किया है, यहाँ देख लो स्प्लिट, एस स्प्लिट ना, SPLIT स्प्लिट करे, कैसे स्प्लिट करे, 450 प्लस 30 480 होता, फिर उसके बाद में इसको कौन से एंगल में लेंगे हम, 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, देखिए सर आप 450 में क्यों चेंज करें मत पूछो बेटे, आपका नाम नहीं मालूम है क्यों, जो आप नॉट अंडरस्टैंड भी लिखे, आप एक ही स्टूडेंट है जो नॉट अंडरस्टैंड लिखे, ठीक है, आपका नाम नहीं पता, फिर मेरे को मालूम भी करना नहीं है नाम, बाद में मालूम कर लूंगा मैं। 450 किस में आता, 9 के मल्टीपल में आता, ऑड है या इवन है, ऑड है, फॉरन इसको चेंज कर देता, tan बन गया cot, ये 30 मैंने सेम लगा दिया, 45 प्लस थीटा है तो सेकंड 6 क्वाड्रेंट में जा रहे हैं आप, यानी कि 4 टाइम पूरा पढ़ लिए बाद, फिफ्थ के आगे जाना है, फिफ्थ तक टू 450 यहाँ हो गया, 450 प्लस थीटा यहाँ पर आता, 450 प्लस थीटा यहाँ पर आता, 6 क्वाड्रेंट, 6 क्वाड्रेंट मतलब ये बन गया मेरा 6 क्वाड्रेंट। इसमें क्या करना आप सीधा सीधा, इन्हें क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव cot 30 की वैल्यू, फिनिश्ड। चलो हो गया। नेक्स्ट 510, नेक्स्ट क्वेश्चन 510 आ जाता सेकंड 510 फोर्थ बिट। अब ये पूरे होमवर्क देने का था बेटे, जबरदस्ती करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, समझे, इतने पूरे नहीं कराते बैठते, ये बच्चों को सीधा सीधा होमवर्क दे देते, होमवर्क देते बच्चे घर में करके आना, खुद समझना, हर चीज हम समझाएंगे तो JEE की सीट नहीं मार सकते फिर आप। ईच एंड एवरी प्रॉब्लम अगर हम ही समझाते जाएंगे तो हर प्रॉब्लम में एक नया ट्विस्ट आता, तो उसका ट्विस्ट कौन ढूंढते, एग्जाम में भी क्या सेम क्वेश्चन आते, समझ रहे क्या आप। When there is no repetition, that is called JEE, no repetition of anything, concept, you must to remember the concept, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो ही आप JEE क्रैक कर सकते, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू क्रैक द JEE। हर प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, हर प्रॉब्लम का मैं ही अपने दिमाग से हिंट दूंगा, आप लोग खाली बैठ के हाँ सर, यस सर, ओके सर, नो सर, नॉट अंडरस्टैंड सर बोलेंगे तो सीधा सीधा समझ जाओ, नॉट गो इन द एप्टीट्यूड एग्जाम आल्सो लिख देना, सेकंड सेम लिखो, अब चेक करते जाओ, यहाँ देख लिए। चलो बेटे जिसको नहीं समझ में आता है यहाँ पे देखिए, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, हाँ ले सकते, 54 दैट मीन्स 540 माइनस 30, क्यों 54 आगे बढ़ गया था ना, मैं मेरे को चाहिए कितना था, 51 चाहिए था, तो मैं क्या करा 90 के टेबल में
9 5 45 के बाद 9 6 54 ले लिया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सीकेंड 9 5 45 प्लस 60। ओ यस सर, ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसमें क्या हो रहा है देखिए आप, सीकेंड ऑफ क्या है ये 96, 9 6 54, 0 एज इट इज, माइनस 30 डिग्री। अब क्या करना है, 90 में इवन मल्टीपल, 90 का इवन मल्टीपल है तो सीकेंड का सीकेंड रहेगा, पता है ना बेटे। खत्म हो गया काम हमारा, गेम खत्म। जो हमको गेम खेलना था वो गेम बजा दिया हमने अभी। 90 का 6 मल्टीपल, खलास इवन मल्टीपल है, सेकंड सेकंड रहेगा, 30 सेम लगा दो यार। बस घुमा फिरा के बात करने का ही नहीं रखने का आपने को, घुमा फिरा के बात ही नहीं करना है। इवन देख लिए, हाँ देख लिए, 90 में इवन आ गया, हाँ तो ये चेंज नहीं होगा, सेम 30 लगा दिया एज इट इज। अब सिक्स्थ पार्ट बोला उन्हें, सिक्स्थ पार्ट 1 2 3 4, फिर ये 5 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा। 6 मतलब यहाँ पर आ गया 6 माइनस 30, यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं। प्लस हुआ माइनस हुआ, ये प्लस हुआ माइनस हुआ, व्हाट इसमें यहां पर आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस ही रहेगा, प्लस रहेगा नहीं रहेगा, प्लस रहेगा ना, क्यों 540 माइनस हो रहे तो यहां पर आता है आपका क्वाड्रेंट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 540, यस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तब क्या वैल्यू बनती है इसकी, ऑल सिल्वर टी कप्स, प्लस प्लस ही रहेगा ये, राइट प्लस ही रहेगा एग्जैक्टली। 966 पोजीशन माइनस 30, 540 माइनस 30, 540 माइनस 30, हाँ यहीं पर रहेगा, राइट बराबर है बेटे। क्या है ये सेकंड है ना, 0 90 180 270 360 540, यहाँ 540 यहाँ पर आता 654, राइट यहाँ पर, यहाँ से नेगेटिव सेकंड, नेगेटिव सेकंड इज नेगेटिव। कैसा देखिए, अब आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को आसान समझ, और थोड़ा आसान होने के लिए 90 180 270 360, उसके बाद फिर ये क्या बनता है बेटे, 9 में 9 9 2 18 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, राइट 9 से 54। अब क्या दिया उन्हें 54, 540 माइनस थीटा, इसी में रहेगा नहीं रहेगा, यस सेकंड क्वाड्रेंट में कौन है, साइन और कोसिकेंट दो ही पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, सेकंड को नेगेटिव लगा दिया, माइनस सेकंड 30 क्या होता बेटे, सेकंड 30 क्या होता 2/√3, सेकंड 30 2/√3, isn't it, got it, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, एवरीथिंग इज क्लियर एवरीवन। नाउ अगर आप ऐसे भी जाओगे, सेकंड एज इट इज लिखो 450 90 into 5 9 5 are 45 plus 60, 45 plus 60, again changes or not changes, yes even आ गया, odd आ गया, changes, secant become cosecant, secant become cosecant, 60 सेम लिख देना। अब चेक करिए 540 प्लस थीटा, 540 प्लस थीटा इधर आता सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव बन गया, माइनस आ गया, माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू क्या है, साइन का उल्टा करिए, √3/2 था वो 2/√3 बन जाता, फिनिश्ड। I understood sir, -2/√3 सुलेमान गौरी, राइट सर। और एक बार समझाइए, समझा दिया बेटे सर, हर प्रॉब्लम में 90 का टेबल ही देखना, एग्जैक्टली राइट अबू तलहा, वॉइस इज लिटिल बिट स्लो, नहीं बेटे मैं बहुत जोर से बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद आप लोगों के पास ही। Me to the same doubt, yes yes, M2 not understand sir, method 2 not understand, क्रिस्टल क्लियर होता बेटे, एक आध बार नया नया है ना थोड़ा मुश्किल होती, उसके बाद सब आसान होते चले जाता, ठीक है।
क्वाड्रेंट 2 आता, यस क्वाड्रेंट 2 आएगा, यस एग्जैक्टली बेटे क्वाड्रेंट 2, इसीलिए क्वाड्रेंट 2 में नेगेटिव है ना, क्यों क्या नेगेटिव है, सीकेंड की वैल्यू नेगेटिव है, इसीलिए माइनस डाले हम, ठीक है मुस्तफा। दिमाग में अल्लाह ताला एक मेथड दे दिया मेरे, इंशाल्लाह वही मेथड से बताऊंगा मैं। मेथड क्या है, हम पहले ऐसा 1 2 3 4 लिख रहे थे ना, अब 1 2 3 4 नहीं लिखता मैं, आप लोगों को और आसानी समझ में आता है। एक और एक क्वेश्चन कर लेंगे, हो गया इसे हुआ। देखो बेटे ये है हमारे दो टाइप, ये टाइप है, ये टाइप 2 में करें अभी हम, ये ऐसा भी कर सकते ऐसा भी कर सकते, ठीक है, दोनों भी सेम है, 450 प्लस ले लो या 540 माइनस ले लो, राइट। मेथड नहीं है, मेथड तो एक ही है, दोनों भी मेथड 2 में है, दोनों मेथड 2 में है, दोनों प्रॉब्लम मेथड 2 में ही है। मेथड 2 किसको बोलेंगे हम, 90 प्लस को बोलेंगे, 90 इंटू जब भी 90 मल्टीप्लाई आएंगे वो मेथड 2 रहेगा, राइट। मेथड 1 में हम अक्सर लेट ले लेते हैं, वरना इसको हम 3 बार कर लेते बैठना पड़ता बेटे। हो गया, आगे बढ़ जाऊं, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद में ये टाइप के एग्जांपल्स क्वेश्चन है वो आप लोग हैंडल कर लो, सॉल्व कर लो। अभी तो स्टार्टिंग है बेटा, इसीलिए स्लो स्लो जा रहे हैं, एक बार आप लोग क्लास में आ जाओ, आप लोग कितना पानी में है और कितना पानी के अंदर है सब पता चल जाएगा, उसके बाद में फिर हम हमारे हिसाब से पढ़ा लेंगे आप लोग। कौन सा वाला है ये, 5th और 6th, यस 5th। कोसेकेंड 750, Nine ones are 9, 9 twos are 18, 9 threes are 27, 9 fours are 36, 9 fives are 45, 9 sixes are 54, 9 sevens are 63, 9 eights are 72, 72, 90 into 9 8 are 72। सुना बहुत खराब बच्चे हैं जी, बाद में वो डाउट पूछते मैं, इसीलिए मैं पूरा कंप्लीट लिख देना। देख 720 प्लस 30 कोसेकेंट ऑफ 90 into 8, 9 8 is 72, 0 ऊपर चलेगा, प्लस 30, चेक कर लो कोसेकेंट मल्टीप्लाई हो रहा किसके, 90 मल्टीपल कौन है, इवन नंबर, कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा, कोसेकेंट लिख दिया मैं, डायरेक्ट 30 लिख देना आप, खत्म, हमारा काम हो जाता। यहाँ पे देखना इवन है ऑड है, इवन है, कोसेकेंट कोसेकेंट 30 सेम, खलास। 2 मार्क का क्वेश्चन रहा, 1 मार्क पक्के है तुम्हारे, अब आगे तुमको आता नहीं आता वो सेकेंडरी है, आईपी के लिए 88 है, इवन नंबर है, कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा, दैट्स इट। 90 ने देखना 90 का मल्टीपल कौन है, इवन है ऑड है, इवन, कॉस कोसेकेंट कोसेकेंट ही रहेगा, 30 सेम, खलास हो गया काम, बस खत्म। नेक्स्ट, अब देखिए आप लोगों के लिए नया मेथड निकाला मैं, 90 180 270 360, फिर 360 से ऊपर दे रहा है 450 540 540 763 630 720। अब क्या करना है भाई, चलो चेक करो, 720 प्लस थीटा कहाँ आते, 720 प्लस थीटा, इधर आते नहीं आते, होता नहीं होता ये, 9 1 9 9 2 18 9 27 9 36 9 45 9 54 9 63 9 72 9 9 81, अब ये जो बनेगा 81 बनेगा, तो यहीं पर आएगा नहीं आएगा, 720 प्लस 30, 720 प्लस 30 वहीं पर आएगा ना, हाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है ना, यस सर पॉजिटिव है, खत्म हो गया काम हमारा, खलास। क्या है इसकी वैल्यू 2, isn't it, या हमारा अंग्रेजी वाला 2 लिख लेंगे, हो गई, फिनिश्ड, थोड़ा और आसान हो गया ना प्रॉब्लम।
आर यू ऑल अंडरस्टैंड और नॉट? अब देखिए मैं Q1 1 2 3 4 5 हटा दिया, मैं हटा देकर डायरेक्ट कर दिया, 0 से 19 90 से 180 100 270 270 360। नेक्स्ट टर्न लिया हम 360 होगा, ये 360 यहाँ पर था। उसके बाद में फिर 440 540 450 540 630 फिर 720 फिर यहाँ पर 810 फिर ऐसा सीरीज आते आती। इसके हिसाब से देख लेना, खलास हो जाता, आसानी से आ रहा था। सर फिर ये क्वाड्रेंट 1 में आता, राइट बेटे, ओके ओके cos 660 30। सर फिर से समझाइए मुस्तफा, अच्छी बात है बेटे। और कोई है? नो। सबसे पहले क्या करें आप, 90 का मल्टीपल कौन है, इवन नंबर है, कोसेकेंट कोसेकेंट सेम लिख ले, 30 सेम लिख दिए, हो गई बात। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये 90 180 270 360 360 वाला ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ाए, फिफ्थ क्वाड्रेंट बना, सिक्स क्वाड्रेंट बना, सेवंथ क्वाड्रेंट, एट क्वाड्रेंट, होता ना 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब नाइन्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे क्या दिया 720 यहाँ पर है हमारा, है नहीं है, पूरा एक राउंड हो गया ना, हो गया, क्या बोले नो 8 बार घुमा, बोले 8 बार पूरे घुमा लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 बार घुमा लिए। अब ये प्लस का मतलब 9 यहाँ पर आना है ना, सोचो जरा सोचो आप, 8 टाइम घुमाओ, 90 को 8 बार घुमाओ, 90 को 8 बार घुमाओ, तो एक बार दो बार तीन चार 5 6 7 8 8 बार घूम गया, प्लस 30 डिग्री एंगल ले, गॉट इट? अरे जब से इतना पढ़ाया यार भाई, कोई इजी नहीं बोले, अब एक बच्चा इजी भी रहा, यस सर वेरी इजी। अरे क्या सता रहे हैं बेटे तुम लोग मेरे को आज। क्वाड्रेंट 4 में कैसा आता बेटा, सोचो आप, क्वाड्रेंट 4 में कैसा आता उन्हें, क्वाड्रेंट 4 में कैसा आता मेरे बच्चे, जरा सोचो, आपको सोचो, मैंने समझता कि क्वाड्रेंट 4 में आएगा, उन्हें उन्हें खुद बोल रहा 90 को 8 बार घुमाओ, उसके बाद आगे बढ़ के उसके आगे के क्वाड्रेंट में 30 डिग्री लेना, 90 को 8 बार घुमाओ, 90 को 8 बार घुमाओ, आगे बढ़ के 30 डिग्री लेना, यानी कि 9th क्वाड्रेंट में। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, 8 यहाँ 8 आ गया, अब थोड़ा घुमा के आगे लियो 30 डिग्री, यहाँ लिया मैं, ये बन गया क्वाड्रेंट 9 आपका। तो क्वाड्रेंट 1 में आता, 4 में कैसा आता बाबा, सोचो आप, एक टाइम आपको बोल रहे हैं 90 घुमाओ, 90 को 8 बार घुमाओ, 4 टुकड़े है यारो, अरे सिंपल सी बात यार, एक पिज्जा लियो, तुम लोग पिज्जा की बात समझ में आती, पूरे पिज्जा बर्गर के बच्चे ये मेरे, एक पिज्जा लेके 4 हिस्से बनाओ, उसमें फिर और 4 हिस्से बनाओ, तो क्या करते आप, वो 4 हिस्सों को लेके अलग अलग कट कट करते, एक वाई एक्सिस मारे थे, एक एक्स एक्सिस मारे, अब उसके बाद में रोटेशन करे आप, एक्स एक्सिस इधर से घुमा दिए, वाई एक्सिस यहाँ से घूम गया, खत्म हो गई बात, 8 हिस्से बन गए। अरे पिज्जा बनाने वाला मैथ्स सीख के आया यारो, इक्वल पार्ट्स बनाता, अब वो छोटे बड़े हो गए तो उसमें मैथ्स में फेल था, समझना अपन, 90 के 8 हिस्से करो बोले उन्होंने, 8 पार्ट यहाँ पर हो रहा, आप मेरे को फोर्थ क्वाड्रेंट में लिए वैल्यू, व्हाई शुड आई टेक 8 पार्ट के बाद प्लस 30 डिग्री, क्या करूं, बाजू वाले के पास मंगू नहीं मंगू, चलिए कॉपी करिए, एक टॉपिक को 3 3 दिन खींचते रहो, उसके बाद पोषण नहीं हुआ बोल के फिर रोते रहो साल भर।
चलिए, वेरी गुड शादाब, यू हैव डन द सिक्स्थ वन आल्सो. क्या है क्वेश्चन? कॉट ऑफ 765, कॉट 765 डिग्री. अब मैं ये आप लोगों को होमवर्क में करो नहीं बोलूंगा, क्यों? एक बच्चा प्रॉब्लम करके ग्रुप में ही डाल दिया बच्चा, अब दूसरे पूरे कॉपी करके सही है सही लिख लेते. अब जिसको आता उन्होंने कर लेते होंगे, ठीक है? तो होमवर्क में कुछ भी नहीं है, लिख लीजिए, कभी घर में बैठा कर प्रैक्टिस कर लीजिए. नहीं आया तो ग्रुप में चेक कर लो, बच्चे के नोट्स भी अपने साथ है. अब यही क्वेश्चन को वो किस तरह से पाई में कन्वर्ट करता देखेंगे, राइट? ओवर. अब तो यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल डिग्री था, अब सीधा सीधा पाई में आ जाते हैं. पाई मतलब समझ में आता ना आप लोगों को? किसमें हम लोग? यस, ग्रेडियंट. रेडियंट. वैल्यू तो उसकी वही 180 रहती, खाली बस घुमाता मैंने अपने को, ठीक है? पाई में रहते वैल्यूज यहाँ से. एग्जाम्पल 2, find the value of sample 2. Find the values of first one. Sine 5 pi by 3. 5 pi by 3. As we all know that 0 degree means 0 है ना? कुछ और है क्या? नहीं ना, 0 है. वही अगर आप 30 को देख रही है, 180 by 6, पाई की वैल्यू क्या होती? 180 by 6 होती. 30 डिग्री वी कैन राइट इट ऑन पाई by 6. 45 को चेक करिए, 180 by 4 दैट इज पाई by 4. 60 डिग्री देखिए, 180 by 3, 3 1 3 6 isn't it or not, right? पाई by 3, ये 3 इधर आ रहा, 4 इधर आ रहा, ये इधर आ रहा, ये 81 180 पाई बन जा रहा, बस इतना ही है. 90 180 by 2 दैट इज पाई by 2, ठीक है? अब यहाँ पर सोचेंगे अब सर यहाँ पर भी क्या 0 पाई by 1 लिखूं मैं? ओवर स्मार्ट मत बनो, वैसे छोड़ो, दिमाग में बैठाओ. क्यों? अब हम पाई में खेलने वाले हैं. अब तक फायरफॉक्स खेल रहे थे, अब फिर पबजी में आ जाओ, बनो क्या कहते हैं ना. पहले के गेम अच्छे हुआ करते थे, जोड़ने वाले गेम आते थे बेटे. ब्रिक्स जोड़िए या फिर किसी और को कुछ और प्रोडक्ट जोड़ने के आते थे. अब पूरे काटने मारने के गेम आ रहे हैं. इस वजह से तुम लोग की थिंकिंग मेंटालिटी पूरी वैसी हो गई, अपने आप को नहीं समझ रहे तुम लोग. चलिए साइन में आ जाइए. इसके दो तरीके हैं, इसके भी दो ही मेथड है, आपकी मर्जी. समझ में आ रही बात तो ठीक है, वरना 5 को 180 से मल्टीप्लाई करो, पुराने वाले जमाने में चले जाओ, सेम सॉल्व कर लो. गॉट इट? साइन 5 पाई by 3 we can split it as sine 2 pi minus pi by 3. अब एक ना एक ग्रुप में से ये बच्चा रहता, सर 2 पाई कहां से आया? नहीं, अब 2 पाई कहां से आया बोलिए सर. अब ऐसे ही बच्चे हैं. कितने बच्चे? जरा रेज योर हैंड्स. डोंट सेंड एनी मैसेज इन माय ग्रुप. रेज योर हैंड्स. कितने बच्चे 2 पाई पूछने वाले? कितने बच्चे हैं? 2. 2 पाई कहां से आया पूछने वाले कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं. 3 4 5 6 7 8 9. अरे बेटे हाथ थालियां मत मारो, मालूम है बच्चे सर कैसे है. 84 में से वेरी गुड, एक्सीलेंट, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरी लाइन लग गई. 2 पाई कहां से आया? यस यस, यही तो मैं चाहता हूँ, बच्चों के माइंड को पहले पढ़ लूं, बाद में उनको पढ़ाने बैठो. इसको मैंने स्प्लिट किया बेटे. देखिए 6 पाई में से अगर मैं 1 पाई निकाल दूं, 5 पाई by 3. इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में है या फिर फ्रैक्शन में है, उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करिए. फ्रैक्शन में था, हम इंटीजर्स में कन्वर्ट करें तो फिर फ्रैक्शन आ गया. इसका मतलब 6 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 पाई में से माइनस अगर आप 1 पाई निकाल देंगे तो 5 पाई by 3 बन जाता. आ गई बात समझ में? आ गई, ठीक है? ये मैं रब कर दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ये आपने प्रॉब्लम के बाजू में लिख लेना ऐसा. जस्ट राइट डाउन दिस वन.
साइड ऑफ नोट बनाइए, नोट बना के वहां लिख लीजिए, साथ ही लिख लेना कुछ ऐसा नोट मिल रही ना, फॉरन नोट निकालना, नोट में लिख लेना, लिख लेके नोट लाके मेरे को दे देना, वो 2000 की नोट रहना, लेकिन कौन है बेटे? यस लिख लिए 180 की वैल्यू पाई, यस 180 इज पाई। रेडियंट में जाइए, रेडियंट, ग्रेड्स में न जाना, ग्रेड चले गया, ग्रेड 400 इयर्स बिफोर पहले आया था। अरे ग्रेड्स का मतलब कैसा है, अरे तुम क्या बोलूं यार मैं, पहले के जमाने में ब्रिटिश क्या चाह रही थी कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज, वो अंग्रेज वो मेन ब्रिटिश जो है वो अलग ब्रिटेन के लोग हैं, वो इन्ना क्या चाह रहे थे, हम सब चीज एक ऐसा करेंगे कि पूरी दुनिया में क्वांटिटी एक जैसी हो जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है ना बेटे। तो बोले क्या करे, पूरी दुनिया के पास से सब चीज उठा के लेकर आए, मीटर्स, किलोग्राम्स, लीटर्स, कैपेसिटी जिसको बोलते हैं हम, सब वो लेकर उठा उठा के लेकर आए। किसी के पास कोई लीटर बोल रहा है, किसी के पास कोई शेर बोल रहा है, कोई 1 किलो, कोई 5 किलो, कोई ऐसा, मतलब केजीस में, कोई शेर में है, कोई लीटर में है, कोई मिलीलीटर में है, अलग 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 मसले थे पूरे। तो पूरे पूरे ला के सामने रख के बोले देखो भाई, ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज चल रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम्स में, मीटर्स में, सेंटीमीटर था ना, मीटर्स में, और साथ में ग्रेड्स भी बनाएंगे, सोचे बोलो। ग्रेड्स बनाने के बाद वो ज्यादा से ज्यादा नहीं चल सका हूँ, क्यों? लोग बोले कि भाई 2 है बेस्ट है, तीसरे वाले को हम पूछते ही नहीं, क्यों? 100 मिनट्स करते, 100 मिनट्स क्या करना, कैसा घड़ी बनाना, सोचिए, 60 मिनट बोलते 1 घंटा होता ना बेटे, 100 मिनट, यहाँ दिन बीच अपने को नहीं कट रहा, अगर खाली रहे तो 100 मिनट कटते फिर 1 घंटे के। तो ना बोले ना, ये चलने वाली बात नहीं है साहब, 60 मिनट्स इज बेस्ट, और पूरी वर्ल्ड के हिसाब से 60 मिनट्स में हमारा 1 घंटा कवर हो जाता। इस बात से ये मिनट निकालिए आप, 100 मिनट का 1 घंटा निकालिए, 60 में हम लोग खुश है बोले वो लोग। तो उन्हें क्या करें, ठीक है बोल के आहिस्ता 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 क्या चले गया आपके पास से, ग्रेड सिस्टम पूरा चले गया। अब बचे कौन अपन, दो ही जगह में बचे हुए अपन, हेक्साडेसिमल और एक सर्कुलर, यानी कि यहाँ पर डिग्री, वहां पर रेडियंट्स, राइट। तो अब यहाँ पर जो है पाई में है, तो रेडियन रहेगा कैसा भी, 3 2 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई बाई 3, फिनिश्ड, हो गई बात। अब ये आसान हो गया हमारे लिए। अब कैसा सर, ये क्या है 360, 360 माइनस थीटा, 360 यहाँ पर आ रहा माइनस थीटा, ओ माय गॉड व्हाट ए लॉजिक, अरे बाप रे, समझ नहीं आया था यार, सर के ऊपर जाने वाला था ये, सर आपने किराक बता दिया। 3 2 6, इसको स्प्लिट करना सीख लो यार तुम, बस इसको स्प्लिट करना सीखो। अगर तुम्हारा 6 टू लेके 10 तक बेस्ट है ये स्प्लिट करने में, तो आपको आसानी से आंसर आता। चलिए 260 होता है, 160 360 होता है ये, 2 इंटू पाई 360, देखिए 2 इंटू पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 कहाँ पर आता, 360 यहाँ पर आता सर, ठीक है। 360 माइनस थीटा, माइनस मतलब थोड़ा पीछे जाओ, चले गए पीछे, क्वाड्रेंट 4, क्वाड्रेंट 4 में साइन क्या है, नेगेटिव है साहब, क्वाड्रेंट 4 में साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या चेंज हो रहा है इसमें, नहीं सर नहीं चेंज हो रहा, साइन 360 नो चेंज, साइन 360 नो चेंज, साइन का साइन, पाई बाई 3 सेम लिख दिए हम, पाई बाई 3 सेम लिख दिए, साइन 360 नो चेंज, पाई बाई 3 सेम। अब 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिए, हो गई बात, माइनस सेम, साइन कौन है ये, पाई बाई 3 कहाँ है, पाई बाई 360 आ रहा, हो क्या बात है साहब, माइनस 60 की वैल्यू क्या है, √3 by 2, √3 by 2, yes exactly. How many of you understood, how many of you understood this one? चलो बस कर देना इन लोगों को आज। अंडरस्टूड सर, सर ये नोट भी याद रखना, याद रखने का नहीं है, वो याद कर लेने का रहता। एक्सप्लेन अगेन, सैयद उमर फारूक, ओके बेटे, मी अंडरस्टूड सर, राइट। चलो बेटे देख लो, थोड़ा सा खाली आप स्प्लिट, इसको स्प्लिट करना सीख लो बेटे उमर, इसको स्प्लिट करना सीख लिया आप, 2 पाई दैट इज नथिंग बट 2 पाई इज नथिंग बट 360 डिग्री, हमको मालूम होना चाहिए, हम चाहे ग्रेडियंट में जाए, रेडियंट में जाइए या किसी में भी जाइए, ये हमारा साथ रहता, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू
पाई, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो हम क्या करें, इसको 2 पाई लिए। क्यों लिए सर 2 पाई? 2 पाई प्लस भी ले सकते थे ना, प्लस लिए तो ये 7 पाई होता था। 7 पाई है यहाँ पर, नहीं है 7 पाई, तो इसलिए मैं माइनस लिया। क्यों, मेरे को 1 पाई कम करना है। 3 2 6, 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 पाई बाई 3 हो गया। अब उसके बाद साइन, ये 360 मालूम है ना हमको, साइन 360 पे नो चेंज, साइन का साइन, थीटा एज इट इज। अब चेक करें हम, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दिए। अब इसकी वैल्यू लिख लिए, फिनिश्ड। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का कल पढ़ेंगे। आप लोग पूरा परफेक्ट होके आना बेटे। कॉलेज में आने से पहले ये सब चीजें मालूम रहना। सोच रहे होंगे आप लोग कॉलेज को आए बाद फिर से पढ़ाते, फिर रिवाइज करते, कुछ भी नहीं पढ़ाते, कुछ भी रिवाइज नहीं कराते। आगे जो छूट गया वो पढ़ाते खाली, बस जो पीछे पढ़ा दिया उसको खत्म, ये स्टॉप कर देते। गलत फहमी मत रही है। कई लोग कई रूमर्स उड़ा के रखे, हाँ कॉलेज में गए तो फिर पढ़ाते हैं बोल के। देखो आप मालूम होता क्या पढ़ाते। यहाँ पे हम इतना स्ट्रांगली एफर्ट्स डाल रहे हैं हमारे बच्चों पर, और हमारे बच्चे ऐसे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्लास को आने के बाद फिर पढ़ाते हो गया। ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन है पूरे खींच लीजिए अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक से निकाल के अपने बुक में डाल लीजिए। सर आप क्वेश्चन लिखोगे तो मैं क्वेश्चन लिख लिया सर, सोल्यूशन नहीं आया बोलेंगे, सोल्यूशन के साथ सॉल्व करो। मैं यहाँ चले, हो गया टाइम, नाउ इट्स टाइम 9:30। चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलो बेटे, मेरे को बैक टू बैक क्लास है इसीलिए मैं एग्जैक्ट टाइम पे रोक रहा हूँ। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्लिक, हो गया। चलिए।